Hello, my dear student. I am Professor Harshal Nikam. Welcome you all in first lecture of sixth semester for the subject Optical Network and Satellite Communication. For this, the subject code 22647. So, let's start some introduction about our teaching scheme and curriculum of ONS subject. Here, this slide shows the teaching scheme for the subject Optical Network and Satellite Communication. Teaching scheme is divided into theory and practical. This part shows the theory part and this part shows practical. This theory part having end semester exam and progressive assessment. You all know this progressive assessment has two parts based on the sessional exam and micro project. Its maximum mark is up to 30 and you all have the end semester exam having up to 17 mark. So total mark is 100 and you will all have the minimum mark up to the 40. This practical is also distributed in end semester exam and progressive assessment. The end semester exam for the practical having 25 mark and this at the rate shows the internal practical exam, and progressive assessment means based on the practicals and based on the continuous adjustment you all have up to maximum mark 25. So this total for this end semester exam and progressive assessment is up to the 50 mark. So this is all about the teaching scheme for the ONS subject. Now this slide shows the curriculum means syllabus of ONS subject. In ONS subject it has two parts. First 3 unit is based on the optical communication and last 2 unit is based on satellite communication system. So starting from first units, this first unit is only based on the fundamental of fiber optic communication and it has the maximum marks or maximum weightage up to the 12 marks. Second unit is based on optical losses, means whatever the losses is occurred in optical communication that we have to learn in this second unit and its maximum mark is up to 16 mark. Third one is the optical network and its maximum weightage is up to 14 marks. Last but one that is based on overview of satellite system and it has a maximum mark 12, and last satellite segment and services which having 16 mark weightage. So this is our curriculum that we are going to learn or we are going to study from unit 1 to unit 5. Before going into detail about the ONS subject, you first understand whatever outcome we achieve after completion this course. So you all know very well, if we are having a total 5 unit, so total course outcome is 5. So we are going one by one. The very first course outcome which is based on first unit is interpret the function of various blocks of optical fiber system. Means we are going to understand or we are going to understand the block diagram of optical fiber system in this particular first unit. Second one is measure the optical fiber cable parameters, means based on the parameter that we have to learn in second unit. On the basis of that parameter we are going to calculate or we are going to measure the losses present in
optical fiber communication. Third one is select relevant architecture of optical networks for the given application. Means after completing the two units, very first one is based on the fundamentals of optical fiber system, second one is based on the optical losses, and in third unit we are going to study about the optical network and its architecture. Means how the network is established with the help of optical fiber cable, that we are going to discuss in third unit. Next, this unit 4th is based on the satellite communication. So satellite communication means satellite, it is one of the medium that we are going to use in wireless communication system. So for that we select uplink and downlink frequency for various satellite services. And last one is maintain satellite services. Whatever the satellite services that we are going to use, that services, how it will maintain is learned into unit 5. So these are some course outcome of our optical network and satellite system. So let's start with our today's lecture by unit 1, that is based on fundamental of fiber optic communication. From that unit I am going to start the topic number 1.1, that is based on fiber optic communication. Please look into this. These are some optical fiber images. This is our optical fiber cable. So through that the information is transmitted with the help of light or in the form of light. This is the fiber, some of the pictures or some of the images of fiber optic cables. Please look into this. Before going into detail about our today's session, this slide shows the learning outcome for the today's session. Means after completing our today's lecture, you all are able to state advantage of optical fiber. Means ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आप ऑप्टिकल फाइबर केबल के एडवांटेज क्या होते हैं उसको स्टेट कर सकते हैं. सेकंड, स्टेट डिसएडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर. ऑप्टिकल फाइबर केबल के डिसएडवांटेज क्या है? दो कि एडवांटेज बहुत ज़्यादा है ऑप्टिकल फाइबर के, बट स्टिल देयर आर सम डिसएडवांटेज. इंट्रोड्यूस ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम. ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होती है, किस तरह से अपन उसको यूज़ करते हैं, कौन से पर्टिकुलर ब्लॉक और कौन से पर्टिकुलर डिवाइसेस अपन ट्रांसमिशन साइड में यूज़ करते हैं और कौन से ब्लॉक अपन रिसीविंग साइड में यूज़ करते हैं, दैट वी हैव टू इंट्रोड्यूस हियर. एंड लास्ट वन इज स्टेट एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन. ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नाउ डेज इन वायर्ड कम्युनिकेशन सेक्टर ट्रिमेंडस यूज़ अपन कर रहे हैं फॉर फास्ट कम्युनिकेशन के लिए ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन. तो किस जगह पे अपन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं वो भी हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं. सो दिस आर द लर्निंग आउटकम्स ऑफ आवर टुडेज सेशन. सो हियर आई गिव सम इंट्रोडक्टरी पॉइंट about the optical fiber communication. The very first one is fiber optic communication is a method of transmitting. Please look into here, fiber optic communication. I write here fiber optic communication. You can also write optical fiber also. So fiber optic communication is a method of transmitting information from one place to another by sending pulses of infrared light through an optical fiber. मतलब फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन ये एक वायर्ड कम्युनिकेशन का नेटवर्क है. वायर्ड, इट इज़ नॉट वायरलेस. ओके, वायर्ड कम्युनिकेशन का नेटवर्क है. थ्रू दैट
optical fiber communication cable, I transmit the signal in the form of light. Okay, ऑप्टिकल फाइबर केबल एक हॉलो पाइप या एक हॉलो केबल होता है. थ्रू दैट केबल वी आर गोइंग टू ट्रांसमिट अ सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ लाइट. ओके, second one is the light is a form of carrier wave that is modulated to carry information. मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन ये आपने प्रीवियस पर सेम में डिजिटल कम्युनिकेशन हो या फिर एनालॉग कम्युनिकेशन में आपने पढ़े. तो सेम यहाँ पे भी अपन लाइट के फॉर्म में इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं, तो मॉड्यूलेशन की यहाँ पे भी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है. सो दैट द कैरियर वेव इज़ मॉड्यूलेटेड टू कैरी द इंफॉर्मेशन. थर्ड वन, फाइबर इज प्रेफर्ड ओवर इलेक्ट्रिकल केबलिंग व्हेन हाई बैंडविड्थ, लॉन्ग डिस्टेंस और इम्यूनिटी टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इज रिक्वायर्ड. मतलब फाइबर ऑप्टिक केबल कम्युनिकेशन कहाँ प्रेफर किया जाता है इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिकल केबलिंग. अपन कॉपर वायर भी यूज़ कर सकते हैं टू ट्रांसमिट अ पर्टिकुलर सिग्नल. अपन ने कोएक्शियल केबल, वायर्ड कम्युनिकेशन का अगर अपन ने एग्जांपल लिया तो बिफोर सम डेज केबल कनेक्शन अगर अपने घर पे आता है तो वो एक कोएक्शियल केबल के द्वारा आता था. बट नाउ डेज इन डिजिटल सिनेरियो दैट केबल टीवी कनेक्शन also use a optical fiber network. सो वो अपन कहाँ पे प्रेफर करते हैं, जहाँ पे हाई बैंडविड्थ की अपनी को ज़रूरत हो, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना हो और इम्यूनिटी टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इज़ रिक्वायर्ड. यानी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का हमें इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, वहाँ पे अपन प्रेफर करते हैं फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन. Next, this type of communication can transmit voice, video and telemetry through local area network or across long distances. Optical fiber communication के द्वारा हम voice signal, video signal या फिर telemetry मतलब टेलीफोन सिग्नल भी ट्रांसमिट कर सकते हैं. इन द लोकल एरिया नेटवर्क, यानी एक पर्टिकुलर लोकल एरिया में अगर अपन नेटवर्क इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो वहाँ पे भी अपन ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ कर सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए. और एट ए लॉन्गर डिस्टेंस, मतलब अभी तो अपन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन इस हद तक पहुँच चुका है कि अपन पर्टिकुलर समुंदर में भी इसका नेटवर्क इस्टेब्लिश कर सकते हैं. यानी ये हो चुका है. ओके, एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक अगर अपने को कम्युनिकेशन करना है तो उसमें भी अपन यूज़ कर सकते हैं वायर्ड कम्युनिकेशन थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर केबल. ऑप्टिकल फाइबर इज़ यूज बाय मेनी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज टू ट्रांसमिट टेलीफोन सिग्नल, इंटरनेट कम्युनिकेशन एंड केबल टेलीविज़न सिग्नल. ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क या फिर ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये बहुत से टेलीकम्युनिकेशन कंपनी अभी यूज़ कर रहे हैं. BSNL सबसे ज़्यादा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क प्रेफर करता है फॉर फास्टेस्ट सिग्नल, और इसमें सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा होती है. ओके, तो बहुत से ऐसे टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ हैं जो ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करती है फॉर द ट्रांसमिटिंग द टेलीकम्युनिकेशन सिग्नल या फिर इंटरनेट कम्युनिकेशन. और नाउ डेज अभी जो अपने घर तक जो केबल टीवी का कनेक्शन आता है वो भी ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन यूज़ करता है. इसमें एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे प्रोबेबली मेंशन करना चाहता हूँ कि जो लोग केबल टीवी यूज़ करते हैं घर पे थ्रू द डिश टीवी या फिर टाटा स्काई, दैट बिलोंग्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन. अगर आपके घर के ऊपर डिश एंटीना लगा है तो वो डिश एंटीना एग्जाम्पल है सैटेलाइट कम्युनिकेशन का. बट अगर आप लोकल केबल टीवी के द्वारा केबल कनेक्शन ले रहे हो तो वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं ऑप्टिकल कम्युनिकेशन. नाउ we look into some advantages of optical fiber cable or communication. Optical fiber cable
has so many advantages. That's why nowadays we are going with the optical fiber cable for communication at a longer distance. So one by one we will see the advantage of optical fiber communication. The very first advantage is the capacity of this cable is much higher than the copper wire cable. यानी जो डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन ट्रेवलिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है ऑप्टिकल फाइबर केबल की इंस्टेड ऑफ कॉपर वायर केबल, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर केबल के द्वारा हम इंफॉर्मेशन और डाटा जो भी ट्रांसमिट करते हैं वो इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट करते हैं. सेकंड, through the capacity is higher sorry though the capacity is higher, the size of the cable doesn't increase like it does in copper wire cabling system. आपने देखा होगा कि अगर आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल बहुत ज़्यादा करंट अगर हमें बहुत ज़्यादा रेटिंग का अगर पास कराना है थ्रू द कॉपर केबल तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी हमें इंक्रीज़ करना होता है. बट ऑप्टिकल फाइबर केबल में इस तरह से नहीं होता. अगर हमें हायर रेटिंग वाला अगर इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करना है इन द फॉर्म ऑफ लाइट थ्रू द फाइबर ऑप्टिक केबल तो उसका साइज हमें बढ़ाने की कोई भी आवश्यकता नहीं. द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दिस केबल इज मच लेस. जो साइज होता है या फिर स्पेस होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल का is as similar as just like our hair. हमारा जो हेयर होता है उस साइज का ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है. तो आप इससे सोच सकते हो कि उसमें से जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होंगी वो बहुत ज़्यादा होंगी ड्यू टू इट्स लेस साइज. ओके. द वेट ऑफ दिस FOC का मतलब है यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक केबल. द वेट ऑफ दिस FOC इज मच लाइटर देन द कॉपर वंस. और ऑप्टिकल फाइबर केबल वो एक हॉलो केबल होता है. बिकॉज ऑफ दैट अगर वो हॉलो अगर नहीं होगा तो उससे लाइट ट्रांसमिट नहीं होगा, क्योंकि हम ऑप्टिकल फाइबर केबल के द्वारा लाइट ट्रांसमिट कर रहे हैं, इसलिए वो हॉलो होना ज़रूरी है. और अगर वो हॉलो है तो उसका जो वेट है वो भी कैसे रहेगा, लाइट. सिंस दिस केबल्स आर डाइलेक्ट्रिक, नो स्पार्क हजार्ड्स आर प्रेजेंट. दिस केबल्स आर मोर corrosion resistant than copper cable as they are bent easily and are flexible. हम नेक्स्ट लेक्चर में ऑप्टिकल फाइबर केबल का कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि उसमें एक क्लैडिंग होता है और एक कोर होता है. और क्लैडिंग और कोर क्या होता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं. फिलहाल आप एक ही चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल एक हॉलो केबल होता है और उसमें दो लेयर होती है, कोर और क्लैडिंग, और उसके ऊपर हम प्रोटेक्टिव जैकेट प्रोवाइड करते हैं. ओके. और ये एक ग्लास मटेरियल से बना हुआ केबल रहता है, इसीलिए इसमें ना ही कोरोजन की कोई चांसेस है और हम इसको इजीली बेंड भी कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ इन फ्लेक्सिबल नेचर. The next advantage is the raw material for the manufacture of fiber optic cable is glass, which is cheaper than copper. मैंने ऑलरेडी प्रीवियस एडवांटेज में आपको मेंशन कर दिया था कि ऑप्टिकल फाइबर केबल ये एक ग्लास मटेरियल से बनता है, इसलिए वहाँ पे कोरोजन रेजिस्टेंस के कोई भी चांसेस नहीं है. और इसलिए जब भी फाइबर ऑप्टिक केबल मैन्युफैक्चर होता है वो एक कॉपर से थोड़ा चीपर होता है, यानी इसकी कॉस्ट जो होती है कॉपर मटेरियल से कम होती है. नेक्स्ट, फाइबर ऑप्टिक केबल लास्ट लॉन्गर दैन कॉपर केबल, यानी फाइबर ऑप्टिक केबल की लाइफ भी ज़्यादा होती है दैन द कॉपर केबल.
So these are some important advantage of fiber optic cable. That's why we are nowadays we are using a fiber optic cable instead of copper cable for a longer distance communication. Here I mention some disadvantage of optical fiber. दो कि ऑप्टिकल फाइबर केबल के बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, बट स्टिल देयर आर सम डिसएडवांटेज. सो आई मेंशन some disadvantage of optical fiber here. The very first one is though fiber optic cables last longer, इसकी बहुत ज़्यादा लाइफ है, बट द इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज़ हाई. यू जस्ट थिंक कि ऑप्टिकल फाइबर केबल का जो स्ट्रक्चर है वो हेयर लाइक होता है, एक सिंगल हेयर लाइक के होता है. तो इसको कंस्ट्रक्शन करना, इसको मैन्युफैक्चर करना और इसको इंस्टॉल करना सिस्टम में और कम्युनिकेशन सिस्टम में, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है. नेक्स्ट, द नंबर ऑफ रिपीटर्स आर टू बी इंक्रीज विद द डिस्टेंस. यस, हमें एक सिंगल केबल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वन प्लेस फ्रॉम नागपुर से मुंबई तक एक सिंगल केबल कभी भी नहीं मिलेगा. हमें इसको ज्वाइन करते हुए जाना पड़ेगा और हर बार सिग्नल को एम्पलीफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी. उसी को हम बोलेंगे रिपीटर्स. इसीलिए द नंबर ऑफ रिपीटर्स आर टू बी इंक्रीज विद डिस्टेंस. जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा वैसे वैसे एम्पलीफिकेशन की प्रोसेस भी हमें करना पड़ेगा. और एम्पलीफिकेशन प्रोसेस मतलब ही यहाँ पे हम रिपीट करेंगे. रिपीट यानी सिग्नल की स्ट्रेंथ वापस रिपीटेशन के मोड पे लाएंगे और वो करेंगे हम रिपीटर्स द्वारा. तो नंबर ऑफ रिपीटर्स भी हमें यहाँ पे ज़्यादा लगने वाले. सो दिस आर डिसएडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर. नेक्स्ट, they are fragile if not enclosed in plastic sheath. Hence, more protection is needed than copper ones. Yes, ऑप्टिकल फाइबर केबल एक पर्टिकुलर ग्लास स्ट्रक्चर से बना हुआ रहता है. अगर इसके ऊपर हमने प्रोटेक्टिव जैकेट अगर नहीं प्रोवाइड किया या फिर इसको प्लास्टिक शेल प्रोवाइड नहीं किया तो वो ब्रिटल इन नेचर होता है ग्लास मटेरियल है. इसलिए पर वो ब्रेक हो सकता है ग्लास मटेरियल और उसी वजह से हमारा इंफॉर्मेशन जो भी हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं वो पर्टिकुलर ट्रांसमिट नहीं होगा. इसलिए इस पर्टिकुलर ऑप्टिकल फाइबर केबल को मोर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है देन द कॉपर केबल्स. सो दिस आर द डिसएडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल. नेक्स्ट, I mention here some important application of optical fiber cable. The very first application is used in telephone system. Nowadays सभी टेलीफोन कंपनीज ऑप्टिकल फाइबर केबल कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं. यूज़ इन सबमराइन केबल नेटवर्क. यस, मैंने आपको बताया था प्रीवियस स्लाइड में कि समुद्र के अंदर भी अभी हम वायर्ड नेटवर्क इस्टेब्लिश कर रहे हैं through the optical fiber communication. Use in data link for computer networks, CATV system. यानी कंप्यूटर नेटवर्क को भी हम ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ सकते हैं. यूज इन CCTV सर्विलेंस कैमराज. CCTV का भी जहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं उसको कनेक्ट करने के लिए या फिर कैमराज को कनेक्ट करने के लिए भी हम फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हैं. यूज़ फॉर कनेक्टिंग फायर, पुलिस एंड अदर इमरजेंसी सर्विसेज. यस, इसमें डाटा रेट वो सबसे ज़्यादा है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में और इसकी स्पीड भी ज़्यादा है. अपन इंफॉर्मेशन लाइट के फॉर्म में सेंड कर रहे हैं एंड यू नो द स्पीड ऑफ लाइट. ओके, तो 2.8 मीटर पर सेकंड ये अगर स्पीड है लाइट की तो ये इस स्पीड से हमारा डाटा ट्रांसमिट होगा. इसलिए जहाँ पे भी इमरजेंसी सर्विसेज है, जहाँ पे फास्ट कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है लाइक पुलिस एंड फायर सर्विसेज, उस जगह पे हम जो नेटवर्क स्टेब्लिश कर रहे हैं वो फाइबर ऑप्टिक केबल से कर सकते हैं. यूज़ इन हॉस्पिटल, स्कूल्स एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम. यहाँ पे भी हम यूज़ कर रहे हैं फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क.
They have many industrial uses and also used for in heavy duty construction. जहाँ पे heavy duty construction है या फिर industrial use के लिए भी हम fiber optic communication use कर रहे हैं. So these some important application of fiber optic communication. So here I summarize our today's session. So after completing our today's session, you all are able to now state advantages of optical fiber, state disadvantage of optical fiber, introduce optical fiber communication system, यानी optical fiber communication system क्या है ये आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो. एंड लास्ट वन इज स्टेट एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, यानी कहाँ पे हम ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं, कहाँ पे, और इसके मेन एप्लीकेशन क्या है ये आप बता सकते हैं. थैंक यू सो मच. I will discuss about the construction and types of optical fiber cable in next lecture. Thank you so much.